Good morning, students. This is JVN Brijesh Kumar Yadav, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapith Women's University, Jaipur. I welcome to all of you in my digital class. Students, today's topic is mycoplasma. Student, I can remind you that before this topic, we have studied virus, bacteria. In bacteria, we have seen historical background of bacteria, how bacteria developed, discovered. After that, ultra-structure of bacteria, nutrition of bacteria, reproduction of bacteria, and some of the economic importance of bacteria. Okay, today's topic is different topic, that is mycoplasma. This mycoplasma is quite different from bacteria and virus. Mycoplasma has many unique features which make it different from others. What are those aspects? We are going to deal with that. So let's start. Mycoplasma species are the smallest free living organisms. Please keep in your mind, you can highlight it, that mycoplasma is smallest free living organism. Before this we have seen virus, that is not free living. Bacteria also not free living, some of them are parasitic and saprophytic, but here exclusively they are free living organism. These organisms are unique among prokaryotes in that they lack cell wall. Another unique feature is that they don't have cell wall. Now, from historical background, Nocard and Ross contributed for mycoplasma discovery. How discovery has been carried out? In 1896, Nocard and Ross reported the cultivation of the causative agent of contagious bovine pleuropneumonia, that is CBPP, which was at the time a grave and widespread disease in cattle herds. Okay, यह रोग जानवरों में उस समय हुआ था. उसकी खोज करने के लिए इन्होंने जो भी अनुसंधान किए तो उसमें ये पाए थे कि निमोनिया नाम की जो बीमारी है उसके काज करने के लिए ये कॉजल ऑर्गेनिज्म था. ठीक है. द वर्क ऑफ नोकार्ड एंड रॉक्स रिप्रेजेंटेड द फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ माइकोप्लाज्मा स्पीसीज, और इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम माइकोप्लाज्मा स्पीसीज को आइसोलेट किया था. ओके. द नेम माइकोप्लाज्मा फ्रॉम द ग्रीक माइकिस. माइको मीन्स फंगस, प्लाज्मा मीन्स फॉर्म्ड. आप जब हम फंजाई पढ़ेंगे वहाँ पे आपको समझ में आएगा. हाँ. was proposed in the 1950s, replacing the term pleuropneumonia like organism. Students, I again emphasize that the full name of PPLO you must remember. Okay. कहीं कहीं पे PPLO के ही नाम से माइकोप्लाज्मा को जाना जाता है. ठीक है. तो आप इस एब्रीविएशन को ज़रूर पढ़िएगा. प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. ओके. रिफरिंग to organisms similar to the causative agent of CBPP. It was later found that the fungus-like growth pattern of Mycoplasma mycoides is unique to that species. ठीक है ना. तो इसका मतलब ये है कि ये जो माइकोप्लाज्मा है वो फंजाई कवक के समीप है, मतलब उससे सिमिलरिटी शो करता है. ठीक है. इसीलिए इसका नाम माइकोप्लाज्मा दिया गया. माइको मीन्स होता ही है फंगस. फिर देखते हैं हम कि कैन पार्ट ऑफ फ्लोरल नॉर्मल फ्लोरा, क्या दिस माइकोप्लाज्मा नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट है या है. दे रिजाइड एक्स्ट्रा सेलुलरली इन द रेस्पिरेटरी एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट and rarely penetrates the submucosa except in the case of immunosuppression or instrumentation, when they may invade the bloodstream and disseminate to numerous organs and tissues. Now, basic characters of mycoplasma. ये माइकोप्लाज्मा है क्या. ओके. तो दे आर प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स, अगेन सिमिलर टू बैक्टीरिया एंड अनलाइक टू virus. Okay. They are prokaryotic microbes about size 150 to 250 nanometer. They are lagging with cell wall, stereo containing cell membrane, fastigious growth required
फ्राइड एज और मलबेरी कॉलोनीज ऑन अगर, यहाँ पे ये ग्रो करते हैं। फ्राइड एग और मलबेरी कॉलोनीज ऑन अगर जहाँ होते हैं वहाँ पे ये अबंडेंट स्थिति में ग्रो करते हैं। नाउ माइकोप्लाज्मा आर सेल वॉल डेफिशिएंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसा कि हमने पहले ही डिस्क्राइब कर लिया है कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होते हैं। यह इसका यूनिक फीचर है। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा पूछा जाता है कि वह कौन सा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो माइकोप्लाज्मा इज़ द ओनली सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज़ लैकिंग विथ cell wall. Okay, so cross section of mycoplasma bacteria, a common cause of typical pneumonia. This bacteria is unusual in that it lacks cell wall, which we have already discussed. Now how they differ from other bacteria. अब ये बैक्टीरिया से कैसे अलग है? चूँकि बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा दोनों प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, लेकिन इन दोनों में एक ये तो डिफरेंस हो गया कि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं है, जो कि आपने देखा है कि बैक्टीरिया में है। तो देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। दे हैव स्टेरॉल्स इन सेल मेम्ब्रेन। स्टेरॉल्स एक प्रकार का लिपिड्स हैं जो कि सेल वॉल में पाए जाते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। दे आर share no DNA homology with known bacteria. They have low guanine level plus cytosine content. Their genome has a lower molecular weight. They exhibit no diversion of wild forms. Okay, तो ये कुछ डिफरेंस है। अब ये देखते हैं कि हाउ दे डिफर फ्रॉम वायरसेस। अब ये वायरस से कैसे अलग है। तो आप वैसे ही बता सकते हैं कि वायरस तो लाइफ और डेड दोनों है, जबकि ये सिर्फ लाइफ है। ओके, और ये प्रोकैरियोटिक्स हैं। दे ग्रो ऑन सेल फ्री मीडिया इन विट्रो। ये ग्रो कर सकते हैं सेल फ्री मीडिया पे। दे कंटेन बोथ DNA एंड RNA, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस एंड यूनिक फीचर फॉर द वायरस, वेयर ओनली DNA और RNA एट ए टाइम फाउंड इन वायरस। ओके, वायरस में या तो DNA होगा या तो RNA होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते, जो कि यूनिक फीचर है वायरस का। लेकिन जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सब में DNA और RNA दोनों होते हैं। दे हैव बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासिटिज्म इन वाइवो। जबकि वायरस में आपने पढ़ा होगा कि दे आर स्ट्रिक्ट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, मतलब सेल के अंदर होंगे, सेल के बाहर नहीं हो सकते। लेकिन ये जो माइकोप्लाज्मा है सेल के बाहर भी है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस हुए माइकोप्लाज्मा का वायरस से। अगले टर्न पे हम नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। थैंक यू।